Inorganic pharmaceutical chemistry. This is a science that makes use of the laws of chemistry to study inorganic substances as drugs. आपने केमिस्ट्री पढ़ी है +1 +2 में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक as well as physical chemistry. Here we are going to study the various laws included in the chemistry related to inorganic substances or inorganic compounds that are used as drugs. What are drugs? These are of medicinal importance. Okay, these are used to treat a particular type of disease. These are some, you can say these as active pharmaceutical agents. Note down, students, in your notebook, API, active pharmaceutical ingredients that are inorganic in nature. Okay, active pharmaceutical agent is that agent that is used for medicinal purpose, a particular medicinal purpose. Okay, students. So their preparation, then chemical nature, okay, then chemical nature, composition, structure, influence on an organism, etc. All these studies we have to do with this subject, inorganic pharmaceutical chemistry. The main source of inorganic drugs happen to be the natural source such as minerals. There are many reports on the use of minerals in medicines. Okay, you can say inorganic drugs mainly originate from minerals of natural origins, and these minerals are having some medicinal properties. Some interesting example of these includes is may if we talk about important mineral, one of the mineral is water and salt. Do you know about the importance of these two inorganic materials in our life? Everyone knows. Okay, partially purified inorganic chemicals, then calcined inorganics like ash or bhasm, and chemically transformed inorganics. Some inorganics are synthesized in our laboratory from pre-existing इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, पहले से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से मिला के उन्हीं को यूज करके न्यू कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर synthesized and that are also used for medicinal purpose for the treatment of a particular disease. At a later stage, many of these were found to be poisonous substances, but are being still used cautiously by some doctors in sufficiently small quantities, as these are very potent in nature. Very potent मतलब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज्यादा इनकी एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा पोटेंट होते हैं. इसकी छोटी सी अमाउंट भी हम यूज करें वो एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं हम उसको. अगर उसकी ज्यादा अमाउंट हम लेते हैं तो वो पॉइजनस सब्सटेंस बन जाती है. ऐसी सब्सटेंसेस जो लार्ज अमाउंट में poisonous action दें that are known as potent substances. Write down in your notebook potent substances. पोटेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं दैट इन लार्ज अमाउंट ट्रिगर पॉइजनस इफेक्ट. ओके, बहुत छोटी सी क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट होती है एक मेडिसिनल एक्शन शो करने के लिए. Thus ancient physicians were quite familiar with the use of antimony, arsenic and mercury. Like one of the most important examples, these three examples are antimony, arsenic and mercury. These are poisonous substances, but these are also used for famous for their medicinal properties also.
from the ancient physicians times. Okay, so in ancient Indian medicine system, mercury was supposed to occupy a dominant position for some times, and whole treatises were written giving its therapeutic and other properties. Many noble metals like gold, copper were also used in medicine. Okay, all these are these metals, noble metals like gold, copper, all these are also of inorganic origin, and the use of minerals as medicinal agents were not restricted to any single country, but all ancient cultures were quite familiar with their medicinal use. अगर हम बात करें इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सिर्फ इंडिया के सिस्टम की बात नहीं कर रही है, एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर यूज होने वाले मिनरल्स की बात नहीं कर रही है, ये पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम्स फॉलो होते आ रहे हैं, अभी तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले कई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे, लाइक Siddha system of medicines, Unani system of medicine, and then homeopathic, Ayurvedic. So many system of medicines are people's words peoples are using from ancient time. Okay, since on ancient time they are using. Okay, so they are talking what they are saying. Although many inorganic chemicals are rarely employed today, yet few inorganic chemicals are being still used in modern medicine. Okay, and synthetic organic chemicals are able to replace the more toxic inorganic pharmaceuticals. Most of these belong to one or other of the following categories. Some examples are given here where there is replacement of synthetic organic chemicals to इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में कैसे कन्वर्ट हुए हैं. सम एग्जांपल्स आर गिवन. दोज that find use for replacing or replenishing the normal content of the body. Students, is this screen visible to you? Screen is Yes, visible ma'am. to you that I am teaching? Okay, then number one, those that find use for replacing or replenishing the normal content of the body. These are required for normal physiological processes and are required in diet. But these conditions are able to deplete their amount in the body. Hence, they have to be replenished or replaced. Calcium, sodium, potassium, magnesium, iron, chloride, phosphate, biocarbonates, oxygen, etc. are examples of these categories. देखो हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक बॉडी है, लिविंग बॉडी है. हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी ये देखो कंपाउंड्स बताए हुए हैं, आयनिक कंपाउंड्स बताए हुए हैं, कुछ आयंस बताए हुए हैं, कैल्शियम आयंस बताए हुए हैं, सोडियम आयंस, पोटाशियम, ये देखो मैग्नीशियम, आयरन, ऑल दीज आयंस ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. हमारी डाइट से हमें मिलते हैं ये, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं टू डू यूजुअल एक्टिविटी. जो भी वर्क डन हम करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए ये आयंस जो है हमारे अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, एंड वी गेट दीज आयंस फ्रॉम आवर डाइट. कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी से ये आयंस डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं. इन दैट केस वी नीड टू रिप्लेनिश. ओके, हमें रिप्लेस करना है. हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बन रहा है, कैल्शियम की कमी हो गई है, देन वी नीड दिस कैल्शियम फ्रॉम एनी आउटसाइड सोर्स. तो हमें बाहर जो हमारे पास केमिकल पड़े हुए हैं, ड्रग्स पड़े हुए हैं, वो मेडिसिन हम यूज करते हैं. आपने सुना होगा, आपके मम्मा कई बार यूज करते होंगे, या पापा घर में कैल्शियम की टैबलेट खाते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, या आपके दादा दादी जैसे यूज करते होंगे विद
जैसे जैसे हमारा एज ग्रुप बढ़ता जाता है, हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, देन वी नीड टू रिप्लेनिश दिस बाय आउटसाइड सोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यूज हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज हो रहा है, देखो बच्चों। देन दोज दैट आर यूज्ड फॉर चेंजिंग रिएक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज एसिडिटी और alkalis, then mineral acids, antacids, alkalis, etc. belong to these categories. Sometime क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, then to neutralize that level of acidity, है ना, we used some external source that will neutralize that acid pH of our stomach. तो हमें उस केस में क्या है, कुछ बेसिस लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे मिनरल बेस लेने पड़ते हैं जो हमारी एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो वो एग्जांपल्स हम अपने आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। देन दोज दैट फाइंड यूज एज मेडिसिनल एंड थेराप्यूटिक एजेंट्स in disease conditions, these may be able to change physical, example topical agent, protectants, then physiological and biochemical processes like astringent, respiratory stimulants, hypnotics, then expectorants. तो देखो कुछ जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी देखो कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं फॉर ट्रीटिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज कंडीशंस। मान लो कोई स्किन डिजीज है तो हमारे पास इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स प्रेजेंट हैं, देन प्रोटेक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, देन फिजियोलॉजिकल कोई इम्बैलेंस हो जाता है, मान लो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी stimulants are required in that case, and then that are also available by these inorganic compounds जो हैं वो हमारी requirements को fulfill करते हैं। then some hypnotics हैं having sedative action, जब कोई ओवर स्टिमुलेटेड पर्सन होता है, मान लो वो जाइकिक है, मेंटली उसको प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर जैसे कुछ पेशेंट्स को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, सीजर्स की प्रॉब्लम है, दौरे पड़ते हैं, उनको काम डाउन करने के लिए हिप्नोटिक्स की जरूरत पड़ती है। इंसोमेनिया के केस में जिनको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया मीन्स नींद ना आना, इंसोमेनिया के केस में हिप्नोटिक्स की जरूरत पड़ती है। एक्सपेक्टोरेंट्स, किसी को ड्राई कफ है या खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कफ है या ड्राई कफ है, उसको रिलीव करने के लिए कई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऐसे ही डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एंटीडोट्स हैं, जैसे स्नेक ने बाइट कर लिया तो स्नेक बाइट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करना है उसके पॉइजन को, सम एंटीडोट्स आर देयर दैट आर ऑफ मिनरल ओरिजिन, दैट आर ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर। then some antimicrobials like microbials, you can say these as antibiotics also, for killing the microorganisms that are pathogenic in nature. Pathogenic means disease causing agents. Write down students, pathogenic means disease causing agents. तो इस तरह के जो एजेंट्स हैं वो उनको किल करने के लिए, मतलब माइक्रोब्स जो हैं उनको किल करने के लिए भी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज ए मेडिसिन यूज की जाती हैं। Those that find use in analytical and quality control processes, most of inorganic chemicals included in pharmacopoeia belong to this category. And the book I am talking about is Pharmacopoeia. In this book, all information about all these categories, okay, of inorganic drugs is given, related to their analytical and quality control processes. All we can find in this book. Titrants such as permanganate, dichromate, iodine, bromate, etc. Buffers like phosphoric acids, salts, then boric acid salts, ammonium salts, etc.
are useful examples of this group. Okay, and all these are some important examples. So many titrant इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे हम एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स करते हैं अपनी लैब में, तो वहां पे हमें देखो आयोडीन चाहिए होता है, ब्रोमेट चाहिए होता है, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए होता है टाइट्रेशन करने के लिए। आप करके आए होंगे ब्यूरेट और पिपेट का यूज करके। देन फोस्फोरिक एसिड, सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स हमें कहाँ से मिलती है? ये केमिकल्स हमें लैब में प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो है वो कहाँ से मिलते हैं? ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं। तो दोज दैट आर यूज्ड as reagents for carrying out other reactions, some inorganic substances find use as catalyst। देखो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है या बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसके रेट को इनहेंस करने के लिए भी यूज होती हैं, मीन्स दे आर यूज एज अ कैटलिस्ट। ओके, एग्जाम्पल्स आर प्लैटिनम, निकल, चारकोल एटसेट्रा। सम एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। आपने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा अपनी +1 की केमिस्ट्री में जैसे। तो कुछ जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जांपल्स आर क्रोमिक एसिड, lithium, aluminium hydride etc. some as absorbents in chromatography and in other several ways. Students, do you know what is chromatography? Students, chromatography is one of the analytical technique, separation method है जिसमें एक केमिकल कंपाउंड को एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से अलग किया जाता है। वन कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स बाय दिस टेक्निक। सो उसके लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए होता है, सिलिका जेल चाहिए होता है प्लेट बनाने के लिए, जिसपे हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम है, सिलिका जेल है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल हमें सॉरी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही प्रोवाइड कर रही है। सो द टर्म फार्मास्यूटिकल, जब भी आप फार्मेसी के कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आपको वहां पे फार्मास्यूटिकल टर्म यूज करने को मिलेगी। दैट इज यूज्ड फॉर एनी केमिकल दैट find use in preparation of medicaments for internal administration of the human body। जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन टर्म व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? स्टूडेंट्स नोट कर लें, ये हम ज्यादातर ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। एडमिनिस्टर करना मतलब लेना, इंजेस्ट करना, ठीक है, हमारी बॉडी में अप्लाई करना, चाहे हम उसको ओरली ले रहे हैं, चाहे हम इंजेक्शन रूट से ले रहे हैं कोई दवाई, चाहे हम उसको एज ऑइंटमेंट या क्रीम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे रूट्स, दिस ऑल दीज आर नोन एज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एक ह्यूमन बॉडी में कोई ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तक कैसे पहुंचाई जाती है, फॉलोइंग डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। तो जहां भी फार्मास्यूटिकल टर्म यूज होती है, फार्मास्यूटिकल का मतलब है कोई भी केमिकल, कोई भी कंपाउंड जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिसको ह्यूमन बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ थेराप्यूटिक एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देन all pharmaceuticals must be carefully controlled for their quality। अब जितने भी ये फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनको हम दवाई की तरह यूज करने वाले हैं, हम कोई भी चीज तो देखो ऐसे हम खा नहीं सकते, अपनी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचा नहीं सकते। मान लो हमने कोई पॉइजनस चीज खा ली, मतलब ज्यादा क्वांटिटी खा ली किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो पॉइजन भी एक्ट कर सकती है और हमारी लाइफ डेंजर में जा सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो,
तो उसके लिए क्या किया जाता है, द क्वालिटी ऑफ दीज फार्मास्यूटिकल्स इज वेरी केयरफुली कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल किया जाता है। और वो क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, फॉर दिस पर्पस specifications of quality have been listed for each pharmaceutical। तो हर एक जो ड्रग है, हर एक केमिकल है, हर एक फार्मास्यूटिकल है, उसकी क्वालिटी के लिए स्पेसिफिकेशंस की एक लिस्ट बनी हुई है। दैट लिस्ट is given in the book, which book, that is pharmacopoeia। उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं हर एक केमिकल कंपाउंड के। मान लो वो केमिकल कंपाउंड है कैल्शियम, तो उस कैल्शियम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसकी क्वालिटी का, कि कितनी, किस क्वालिटी की, किस क्वांटिटी की जो कैल्शियम है उसको हम एज ए मेडिसिनल एजेंट यूज कर सकते हैं। ऑल द स्पेसिफिकेशंस आर गिवन इन दिस स्पेसिफिक बुक दैट इज नोन एज फार्माकोपिया। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया इन आवर फर्स्ट मॉड्यूल। क्योंकि हम सब्जेक्ट इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको जो पहले जो पढ़ाया दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? इज देयर एनी डाउट? मैम नो मैम। आ गया मैम। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। Every country has legislation on pharmaceutical preparations that sets standards and obligatory quality indices for medicaments, raw materials and preparation employed in the manufacture of drugs। Students, हम सब जानते हैं जो हमारी कंट्रीज, जो भी कंट्री है हमारी, इसमें कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ लेजिस्लेशन है, कुछ कानून बने हुए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? हमारी सेफ्टी के, ओके, हमारा ध्यान रखने के लिए। अब जो मेडिसिन्स हैं ये क्यों बनाई गई हैं? ड्रग्स क्या है? ये लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं इनको। जो ये मेडिसिन्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप जो फार्मासिस्ट हैं, ऑल ऑफ यू आर वुड बी फार्मासिस्ट, आने वाले कल में फार्मासिस्ट बनने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले हो। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, उसको 1 मिनट में अगर वो दवाई मिल जाए लाइफ सेविंग ड्रग तो वो बच सकता है, अगर ना मिले तो वो मर सकता है, और अगर गलत मिल जाए वो मेडिसिन तब भी वो बच नहीं सकता, हम उसकी लाइफ को बचा नहीं सकते। तो हमारी ये जो मेडिसिन्स हैं इनको भी किसी पेशेंट तक पहुंचाने के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ लेजिस्लेशन बने हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही जो है स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सम लेजिस्लेशन। एक सब्जेक्ट होगा बच्चों आपको, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट जो है आपको सारे जो लेजिस्लेशंस है रिलेटेड टू फार्मेसी, लॉज है रिलेटेड टू फार्मेसी, वो आपको एक्सप्लेन करेगा ये सब्जेक्ट। ये अपनी आने वाली आप क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इस क्लास में आपको ये सब्जेक्ट नहीं है। बट मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि क्योंकि ड्रग्स आर रिलेटेड टू लाइफ, इसीलिए ये हमने जो भी इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है अंडर सम रूल्स ही हम इनको यूज करते हैं। विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कोई भी पेशेंट मेडिसिन यूज ना करे, क्योंकि ये सीधा जाके मेडिसिन हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जानी है। एक बार जो एक्शन जो है वो शो हो जाता है, उसको जो है उसका एंटीडोट निकालना और उसको रिवर्स करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हमने यूज करना है। अब ये जो मेडिसिन बनाते हैं ये देखो, जो फार्मासिस्ट है उसी ने ही दवाई बनानी है, और इस जो अप्लाइड साइंसेस का ये जो कोर्स है फार्मेसी, आई एम गोइंग टू शेयर
with you the importance of pharmacy कि जो फार्मासिस्ट को नॉलेज है दवाइयों की, लाइफ सेविंग ड्रग कैसी बनाई जाती हैं, ठीक है, इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो किसी भी और फील्ड को नहीं पता है। इवन डॉक्टर जो है, फिजिशियन जो है, उनको नहीं पता ये दवाई कैसे बनाई है फार्मासिस्ट में। फिजिशियन जो है वो दवाई देंगे फार्मासिस्ट की बनाई हुई, बट ही डजंट नो how this medicine is manufactured, how this what are the various steps, what are the various phases that are used in the preparation of these types of medicines, and then they come for the dispensing means जो आगे मार्केटेड की जाती है, वहां तक पहुंचाई जाती है, पेशेंट तक पहुंचाई जाती है, तो वो नहीं जानते हैं डॉक्टर्स। तो फार्मासिस्ट को जो भी दवाई बनानी है उसको एक ओथ लेनी पड़ती है, एक शर्त लेनी पड़ती है कि वो जो दवाई बनाने वाला है उसमें वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, वो अपनी नॉलेज को और आगे से आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार आगे बढ़ाएगा। हमेशा उसने जो है इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जब भी कोई मेडिसिन बनानी है, आगे पेशेंट को समझानी है वो मेडिसिन, या डॉक्टर को या नर्सिस को एजुकेशन देनी है अबाउट द मेडिसिन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय दैट फार्मासिस्ट, तो उसको कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑल दो स्टैंडर्ड्स आर गिवन इन दिस फार्मास्यूटिकल बुक दैट इज नोन एज फार्माकोपिया। अब देखो फार्माकोपिया, हर एक कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होता है। सबसे पहले देखो फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड क्या है, फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स अ ड्रग और मेडिसिन, एंड पोयो मीन्स टू मेक अ मेडिसिन, एक मेडिसिन को बनाना है, एक ड्रग को बनाना है, दैट इज नोन एज फार्माकोपिया। बच्चों जल्दी से इसके स्पेलिंग नोट कर लो, फार्माकोपिया के स्पेलिंग नोट कर लें सभी बच्चे। ये बच्चों को याद नहीं होते, गलत स्पेलिंग लिखते हैं। हमें एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचानी है, लाइफ सेविंग ड्रग पहुंचानी है पेशेंट तक। सो द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया गोट पब्लिश्ड इन 1864। सबसे पहले जो फार्माकोपिया बना है ब्रिटिश फार्माकोपिया, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो कब बना था, 1864 में। इट वॉज इंक्लूडेड, इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या कुछ पड़ा हुआ है, मोनोग्राफ्स थे बेंजोइक एसिड के, गैलिक एसिड के, टार्टरिक एसिड के, टैनिक एसिड के, कैम्फर के, लैक्टोज, सुक्रोज एंड 7 अल्केलॉइड्स अलोंग विद देयर सोल्ट्स। सिर्फ इतना कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके मोनोग्राफ्स उसमें प्रेजेंट थे। अब मोनोग्राफ क्या होते हैं, मैं अपने आने वाली जो आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बताऊंगी मोनोग्राफ क्या होते हैं। मोनोग्राफ में किसी एक ड्रग का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसमें क्या क्या टाइटल्स होते हैं, क्या कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं, वो आपको अगली क्लास में मैं करवाऊंगी। अभी देखो जो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है दैट वाज रिलीज्ड इन 15 दिसंबर 1820। यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया 1820 में बन गया था, क्योंकि हमारा इंडिया तब ब्रिटिश रूल्स के अंडर था, है ना, रूलर्स के अंडर था। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की पब्लिकेशन 1864 में हुई, एंड इन इंडिया में जो है इन द प्री इंडिपेंडेंस डे BP British Pharmacopoeia was employed as the official book of standards। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही ऑफिशियल बुक माना जाता था दवाइयां बनाने के लिए। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, जब इंडिया बन गया तो इंडिया फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन है दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1955। because we are discussing here about the history of pharmacopoeia, कैसे existence में आया फार्माकोपिया।
तो उसमें हम सब पढ़ेंगे। यूएसए में सबसे पहले था, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया था पहले, देन इंडियन फार्माकोपिया बना, देन इट वाज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर प्रेपरेशन। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया बनाया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को बोलते हैं हम यूएसपी। सो जो पब्लिश हुआ इसके एडिशंस वो सारे बताए हुए हैं। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर प्रेपरेशन। क्रूड ड्रग्स बच्चों क्या होती हैं? दीज आर ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, चाहे ये प्लांट सोर्स से हैं, चाहे एनिमल सोर्स से हैं, चाहे ये एनिमल सोर्स से हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। These are the drugs that are of medicinal importance, and originate from natural sources like plants, minerals and animals. Okay students, तो इन क्रूड ड्रग्स की information is included in this Indian Pharmacopoeia. Then the third edition of IP got published in 1985. जो तीसरा एडिशन था, फर्स्ट एडिशन क्या था? ब्रिटिश फार्माकोपिया। सेकंड एडिशन क्या था? जो 1955 में बना आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन थर्ड जो एडिशन है दैट इन 1985, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। अभी लिंक टूट जाएगा बच्चों, देन यू हैव टू रीजॉइन। देन अडेंडम 1 to 3rd edition has been published in 1989. तो ये कुछ और चेंजेस किए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Our link is going